عوام پر ریلیف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ 3500 یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا گیا ہے۔ 12,000 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین فارغ ہو گئے ہیں۔ لاہور کے 100 سے زائد سٹورز پر سامان کی پیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ سامان کو متعلقہ کمپنیز اور کچھ ویئر ہاؤسز میں منتقل کیا جائے گا۔ لاکھوں خاندان سستی گھریلو اشیاء کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں، تو عوام پر ریلیف کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ 3500 یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا جا رہا ہے۔ 12,000 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے 100 سے زائد سٹورز پر سامان کی پیکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سامان متعلقہ کمپنیز اور کچھ ویئر ہاؤسز میں منتقل کیا جائے گا۔ لاکھوں خاندان سستی گھریلو اشیاء کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں، تو عوام پر ریلیف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ 3500 یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا گیا ہے۔ 12,000 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے 100 سے زائد سٹورز پر سامان کی پیکنگ سامان متعلقہ کمپنیز اور کچھ ویئر ہاؤسز میں منتقل کیا جائے گا۔ لاکھوں خاندان سستی گھریلو اشیاء کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ چیئرمین آل پاکستان ورکرز الائنس ملک سلیم موجود ہیں۔ جی سر، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔ آپ بتائے گا کہ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث 12,000 ملازمین اب فارغ ہو گئے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں جی، یہ حکومت نے بہت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ کہ یوٹیلیٹی سٹور ایک ایسا ادارہ تھا جو خود کماتا تھا اور خود اپنی سیلری جو ہے نا خود جنریٹ کرتا تھا، اور اس میں 12,000 خاندان نہیں بلکہ جو وینڈر اور جو مزدور تھے تقریباً یہ 1 لاکھ کے قریب تقریباً خاندان بنتا ہے جو اس سے اپنا جس کو فرق پڑا ہے۔ تو لہذا یہ ہم تو یوٹیلیٹی سٹور جو ہے یہ باقاعدہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتا ہے۔ 10 سالوں میں ہم نے یوٹیلیٹی سٹور نے 129 ارب روپیہ جو ہے نا حکومت کو ٹیکس ادا کیا ہے۔ اس ادارے کو بند کرنے کی بجائے اس کو اچھے طریقے سے ہمارے ہینڈ اوور بھی کر دیتے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے انہوں نے کہ 12,000 جو ہمارا مزدور ہے اور اس کے علاوہ جو وینڈرز ہیں جو مزدور کام کرتے تھے، یہ سب خاندان جو ہے نا یہ اس سے جو ہے نا سرو ہوئے ہیں۔ تو بس حکومت کی یہ پالیسی جو ہے نا بہت یہ ظلم ہوا ہے لوگوں پہ۔ جی سر، یہ بھی بتائے گا کہ اس فیصلے کے بعد آل پاکستان ورکرز الائنس کا اب کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ ہماری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہماری جو میٹنگ کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی ہماری میٹنگ ہے، اور اس میں جو ہے آگے کا لائے عمل دیکھیں گورنمنٹ نے جو ہے ہمیں VSS جو ہے ایک پروگرام وہ دیا ہے کہ اس کے تحت جو ملازمین ریگولر ہیں اور ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ والے، اس میں ہم نے الائنس یونین نے ان کو لایا اپنا دیا پیکج بنا کے کہ ان کو دیا جائے، اگر یوٹیلیٹی سٹور کو بند کرنا ہے تو وہ ہمیں پیکج دیا جائے۔ تو اس میں پیکج ہم نے بنا کے دیا ہے، تو دیکھیں آگے وہ اپروو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جو بھی لایا عمل ہوگا ہم انشاءاللہ۔ جی سر، یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے مطابق کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا گیا ہے؟ لیکن یوٹیلیٹی سٹور پہ پہلے تو سبسڈی چلتی تھی، تو سبسڈی انہوں نے بند کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹوٹل جو ہے نا پرچیز بھی ہماری بند کر دی۔ سبسڈی کی وجہ سے جو کسٹمر جو ہے نا وہ کم ہو گیا، اور انہوں نے ہماری پرچیز بھی بند کر دی۔ گورنمنٹ کا موقف تھا کہ جی یہاں کرپشن ہے اور یہ ناقص چیزیں ہیں، اور یہ بالکل غلط تھا۔ اگر کرپشن تھی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب کرتے اور ان کو پکڑتے۔ گورنمنٹ تو خود کر سکتی ہے نا سب، تو لیکن یہ مزدوروں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ہمارے ساتھ چیئرمین آل پاکستان ورکرز الائنس ملک سلیم صاحب موجود تھے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عوام پر ریلیف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا جا رہا ہے۔ اس پر عوام کا کیا رد عمل ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ نہیں، اچھا تو نہیں ہے۔ پہلے تو چلیں پھر بھی کوئی سستی چیز مل ہی جاتی تھی، چاہے رمضان میں ملتی تھی، لیکن اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ سستے داموں اشیاء خریدتے تھے، اس میں بھی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ غریب عوام یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کرتی تھی تاکہ اپنی چیزیں اچھے اور سستے داموں لے سکیں۔ حکومت کے اس اقدام کی وجہ سے اب غریب عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ سستی چیزیں مل جایا کرتی تھی بازار کی نسبت، تو اب تو وہ بھی بند ہو چکے ہیں، تو غریب عوام کہاں جائے گی، آگے ہی پریشان ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ ریلیف تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔
अब आपको बताएं कि चीनी माफिया हुकूमत के सामने डट गया है। चीनी बदस्तूर 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि 50 किलो का थैला 9,150 रुपए का हो गया है। आलू 100, प्याज 80 रुपए तक किलो फरोख्त किए जा रहे हैं और टमाटर 90, लहसुन 240, अदरक 590 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। बात करें फलों की तो आम 300 और केला अव्वल 250 तक दर्जन दस्तयाब है। शहर में गिरा फरोशों का राज, इंतजामिया चीनी माफिया के सामने बेबस। चीनी के जखीरा अंदोजों और सट्टाबाजों के खिलाफ हुकूमती एक्शन के ऐलानात के बावजूद ओपन मार्केट में चीनी सस्ती ना हो सकी। चीनी बदस्तूर परचून में 190 से 200 रुपए किलो तक बिक रही है। विफाकी हुकूमत के ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9,050 से 9,150 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में होलसेल में चीनी की कीमत 183 रुपए किलो है और परचून में 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। वाज़ेह रहे कि एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद चीनी की कीमत 140 से बढ़ती 190 रुपए किलो तक पहुंच गई थी और तब से चीनी सस्ती नहीं हो सकी। अब हुकूमत 5 लाख मैट्रिक चीनी इंपोर्ट करके कीमत कम करने का इरादा रखती है। शहरियों ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से चीनी की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। अब आपको बताएं कि औकात कार की पाबंदी ना करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया है और हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जौहर टाउन में मियावाकी की तर्ज पर दरख्त लगाने की भी तजवीज दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि पंजाब के 760 कॉलेजेस में शजरकारी होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, नहर पर अदालत की इजाजत के बगैर कोई दरख्त नहीं कटेगा। अदालत ने तजवीज दी कि मियावाकी की तर्ज पर जौहर टाउन में दरख्त लगाए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि स्मोक एमिशन एनालाइजर मशीन का इफ्तिताह होना था, उसका क्या बना। सरकारी वकील ने बताया कि इफ्तिताह में कुछ वजूहात की बिना पर ताखीर हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि DG-PHA के दरख्तों की कटाई बारे रिपोर्ट तलब की थी। PHA के वकील ने बताया कि DG का दरख्तों की कटाई के मुतल्लिक पुराना बयान है, अभी DG की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि इस्लामाबाद जाते हुए शेखुपुरा स्याह धुआं देखा। अदालत ने हिदायत की कि हरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी भारी जुर्माना करें। अदालत ने मजीद समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बिजली सार्फिन हो जाएं खबरदार, एक से ज्यादा सिंगल मीटर्स के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला किया गया है। PPMC ने लेस्को और दीगर तकसीम का कंपनी से मीटर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 14 जुलाई तक तमाम कंपनी से रिकॉर्ड तलब करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कानून के तहत नस्ब मीटर्स पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। खबरदार होशियार, नेपरा कवानीन के तहत सिंगल फेज मीटर ना लगवाने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी हुकूमत ने एक से जायद मीटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों से एक घर पर नस्ब सिंगल फेज मीटर्स की तादाद का रिकॉर्ड तलब करने के लिए मरासला भिजवा दिया। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने 14 जुलाई तक तमाम कंपनियों से रिकॉर्ड तलब करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक कंपनियों की जानिब से नस्ब की तादाद और सारिफीन का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। रिकॉर्ड के तहत विफाकी हुकूमत मजीद कार्रवाई करने का फैसला करेगी। वाज़ेह रहे कि पड़ताल के जरिए ज्यादा मीटर्स को प्रोटेक्टिव कैटेगरी के लिए नस्ब करने की निशानदही हो सकेगी, जिसके बाद प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए नस्ब होने वाले मीटर्स पर नेपरा कवानीन के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। ताहम नेपरा कवानीन के तहत नस्ब मीटर्स पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। जाली एनरोलमेंट करने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद PMIU की टीमें किसी भी वक्त स्कूल विजिट करके रजिस्टर चेक करेंगी। दूसरी जानिब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पे केयर गिवर की तनख्वाहों की अदम अदायगी का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया है, अमल दरामद न करने वाले सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाली इनरोलमेंट करने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद PMIU की टीमें किसी भी वक्त स्कूल विजिट करके रजिस्टर चेक करेंगी। इंस्पेक्शन टीमों की GPRS से लोकेशन भी चेक की जाएगी। जाली इनरोलमेंट पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब भर में अभी तक 18 लाख और लाहौर में 45,000 जाली इनरोलमेंट पकड़ी जा चुकी हैं। इनरोलमेंट का डाटा दुरुस्त करने के बाद स्कूलों को आउटसोर्स करने के लिए फेज 3 का आगाज किया जाना है।
फेज 3 में मजीद स्कूलों को ठेके पर देने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में तैनात केयर गिवर को गर्मी की छुट्टियों में तनख्वाहों की अदम अदायगी का इंकिशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तनख्वाहों की अदम अदायगी का नोटिस ले लिया। स्कूल सरबराहान को गर्मी की छुट्टियों में भी माहाना तनख्वाहें अदा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर महकमा बल्दियात में 30 करोड़ 45 लाख के घपलों का इंकशाफ हुआ है। रिकॉर्ड कदम फराहमी पर 9 करोड़ 45 लाख के एतराज़ात सामने आए हैं, जबकि साल 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। रिकवरी न करने से 6 करोड़ 4 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। महकमा बल्दियात में घपले। माली साल 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट ने महकमा बल्दियात की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल दिया। महकमा बल्दियात पंजाब में 30 करोड़ 45 लाख की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड कदम फराहमी पर 9 करोड़ 45 लाख रुपए के एतराज़ात सामने आए। जायद अदायगियों की मद में 1 करोड़ 1 लाख की माली बेज़ाब्तियां हुई। रिकवरी न करने से 6 करोड़ 4 लाख रुपए माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। रूल्स की खिलाफ वर्जी और प्रोक्योरमेंट की मद में खजाने को 10 करोड़ 35 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। ह्यूमन रिसोर्स की मद में 19 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि मुतफारिक माली बेज़ाब्तियों की मालियत 3 करोड़ 38 लाख रुपए रही। 70 लाख की रकम काबिल वसूल करार, मगर वसूली का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। महकमा बल्दियात में इंतजामी हिदायत पर अमल दरामद का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। साबिका ऑडिट रिपोर्ट से मुतालिक PAC की हिदायत पर अमल दरामद भी इल्तवा का शिकार है। माली बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई। बैंक ट्रांजैक्शंस पर भारी जुर्माने और दीगर उमूर के खिलाफ हड़ताल होगी। लाहौर चैम्बर की 19 जुलाई को हड़ताल की कॉल। शहर की ताज तंजीमों के कायदीन की लाहौर चैम्बर की कॉल पर इज़हार यकजहती। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर की जानब से 19 जुलाई को हड़ताल अनाउंस की गई है और उससे इज़हार यकजहती के लिए शहर की ताजर बरदरी की तंजीमों के मरकज़ी अहदेदारान की लाहौर चैम्बर आमद का सिलसिला जारी है। आज पोल्ट्री ट्रेडर्स के सदर तारिक जावेद और इसके अलावा शालम मार्केट से राना निसार जो हैं वो लाहौर चैम्बर पहुँचे हैं और सदर लाहौर चैम्बर को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। ये शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब, लोग आ रहे हैं हड़ताल को कामयाब बनाने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से जी अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड लखपत एसोसिएशन, फिरोजपुर रोड एसोसिएशन, मुल्तान रोड एसोसिएशन, शालम मार्केट, ये पोल्ट्री एसोसिएशन, बेशुमार लोग आए हैं। तो उनकी तो कवरेज हम नहीं की, मगर अब शालमी वाले और पोल्ट्री एसोसिएशन और टोरंटन मार्केट वाले मौजूद हैं। हम 19 जुलाई को हड़ताल पे जा रहे हैं। 37AA पे, नंबर 2 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे, नंबर 3 ये जो 16% किराए पे टैक्स लगाया है उस पे, नंबर 4 ये जो गिरफ्तारी है बेजा किस्म की उसके ऊपर, और नंबर 5 जो छापे मारे जा रहे हैं उसके ऊपर। हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। जब तक ये हमारे जो तजावीज़ें हैं इस पे अमल नहीं होता, जब तक ये इनको विड्रॉल नहीं करते, हम हड़ताल करने जा रहे हैं और हड़ताल करेंगे। हालांकि KP के हाई कोर्ट ने इस 37AA पे फैसला भी दे दिया है और 25 जून को भी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 37A पे, फिर इन्होंने 37AA कर दी। एक चलते हुए कारोबार को तबाह किया जा रहा है। इसके नुकसानात ये होंगे कि 2000 आगे एक्सपोर्टर चला गया, 21 मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। बिल्कुल, आपने लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की गुफ्तगू सुनी। मौजूदा माशी हालात के अंदर हालात का तकाजा ये था कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर हुकूमत माशी अमूर को चलाती, मैशत की बहाली के लिए अपनी जो रेगुलेशंस थी उनको बेहतर करती और बिजनेस कम्युनिटी का इनपुट लेती। लेकिन इस तरह के इकदामात बिजनेस कम्युनिटी की नाराज़गी का बायस बन रहे हैं और इस मामले को लेकर लाहौर चैम्बर खासा कंसर्न है, जिसकी वजह से 19 जुलाई की हड़ताल की कॉल दी गई है। ताजर बरादरी ये चाहती है कि जो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने जो नकात उठाए हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के जायज़ मुतालबा था, उनको हल किया जाए और पॉलिसी साज इदारे जो हैं उनको बिजनेस कम्युनिटी के साथ बिठाया जाए ताकि हमारी मैशत की। खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली के रेफरेंस का ये मामला है। स्पीकर पंजाब असम्बली की हुकूमती और अपोजिशन अरकान से मुलाकात हुई। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मामला हल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस के मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अहम पेशरफ्त करते हुए असम्बली चैम्बर में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात की। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान को सुनवाई का मौका फराहम करते हुए सियासी फाहम व तफहीम के माहौल को फ़रोग देने की कोशिश की। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने मसले के हल के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुज़ाकरात की तजवीज़ को खुशाइंद करार देते हुए इसे एक पसंदीदा पार्लिमानी अमल करार दिया। इस मौके पर हुकूमती और अपोजिशन ने बाहमी मुशावरत से सीनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमान में इख्तलाफ राय जमहूरी रिवायात का हिस्सा है। NA 120 और PP 151 की UC 108 के 4 देहात की सुनी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद रखा। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट भी स्पीकर के हमरा थे। यूनियन काउंसिल्स में मजमूई तौर पर 60 करोड़ की लागत से सड़कों की तामीर होगी। 4 देहातों में मजमूई तौर पर 28 करोड़ 92,97,000 से 86 सड़कों और गलियों की PCC तामीर होगी। UC 108 के 4 देहातों करोल विलेज, जंजुआ, हरदो, जब्बू और सगियां वसाओं की सड़कों और गलियों की तामीर हो सकेगी। तकरीब से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था, करोल घाटी से करोल गांव की सड़क की 30 करोड़ रुपए की लागत से मरकजी सड़क बनाई जा रही है। शरीफ साहब और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो इस हल्के इस यूनियन काउंसिल के लिए फंड रखे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मुश्किल होती थी कि जब आप करोल से अंदर आते हैं तो ये सड़क जो बन रही है वो सड़क करोल से शुरू होके ये कोई 14 किलोमीटर की सड़क है। इसकी लागत 30 करोड़ रुपए है। वो आपकी यूनियन काउंसिल के लिए ये सड़क बन रही है ताकि आपको अपने गांव पिंड में आने की मुश्किल ना हो। मानसून बारिशें शहराओं की हिफाजत के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर तमीरात व मवासिलात सोहेब अहमद भट्ट ने हिदायत जारी की हैं। सूबाई वज़ीर मवासिलात मलिक सोहेब अहमद भट्ट का कहना है कि हाईवे के तमाम एक्सियन SDOs और दीगर स्टाफ मुतहरिक रहे, शाहराहों का मुकम्मल जायजा लिया जाए, बारिश के बाइस पड़ने वाले गड्ढों की फौरी मरम्मत की जाए, शाहराहों के खराब शोल्डर्स को मरम्मत किया जाए, मकामी ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर बारिशी पानी का फौरी निकास किया जाए। सूबाई वज़ीर का यह भी कहना था कि शाहराहों की फौरी मरम्मत से अवाम उन्नास को सफरी मुश्किलात से बचाएं। हमारा अज़म अवाम की खिदमत और सहूलत की फराहमी है। वज़ीर आला राशन कार्ड का दायरा कार सुथरा पंजाब के वर्कर्स तक वसी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास बोले CEOs तरीक़ेकार के तयन के लिए अहल वर्कर्स की फहरिस्तें भिजवाएं। सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर का वर्कर्स की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़म करते हुए कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्कर्स की फलाह के लिए मैकेनिज़्म बनाने का हुक्म दिया। CEOs तरीक़ेकार के तयन के लिए अहल वर्कर्स की फहरिस्तें भिजवाएं। राशन कार्ड की सहूलत सिर्फ अहलियत पूरी करने वाले वर्कर्स को मिलेगी। वज़ीर बल्दियात ने मई के महीने से हासिल का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत की। शकील अहमद का कहना है कि वर्कर्स की फहरिस्तें मुकम्मल होते ही राशन कार्ड का अजरा कर दिया जाएगा। महकमा मादनियात के 40,000 माइंस वर्कर्स के लिए मरियम नवाज राशन कार्ड स्कीम का आगाज हो गया है। माइंस वर्कर्स हर माह 3,000 रुपये तक का राशन हासिल कर सकेंगे। सूबाई वज़ीर मादनियात शेर अली गोरजानी ने माइंस वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज राशन कार्ड स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी मादनियात नईमुल्ला भट्टी, DG मादनियात कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद और कमिश्नर माइंस लेबर मोहम्मद असद शरीक हुए। शेर अली गोरजानी का कहना था, मरियम नवाज राशन कार्ड वज़ीर आला पंजाब के इस विजन की अमली तस्वीर है जिसका मकसद मेहनत कश तबके को मुआशी तहफ़्फ़ुज़, सहूलत और इज्जत देना है। फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए बड़ा इक़दाम किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का एयरपोर्ट के गिर्द परिंदों के खतरात से निमटने का जामे एक्शन प्लान, चील गोश्त की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी, शादी हॉल्स और पोल्ट्री फजलात को ठिकाने लगाने के लिए सख्त हिदायत दी गई हैं।
ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں فضائی حدود کو محفوظ بنانے اور ہوائی اڈے کے قریب پرندوں سے جہازوں کو لاحق خطرات کے تدارک کے لیے ایک جامع منصوبے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور کو اسسٹنٹ کمشنر کینٹ، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار اور دیگر نے بریفنگ دی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب حسان احسان نے کہا ہے کہ لاہور میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں کا روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا مرتب کیا گیا۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ ہاؤس ایجارٹن روڈ پر دوران پریس کانفرنس سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب حسان احسان کا کہنا تھا PITB کے تعاون سے ویکا ایپ بنائی گئی ہے۔ روٹ پرمٹ کے لیے ٹرانسپورٹرز کو دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ بیسکلی موٹر وہیکل آرڈیننس اور موٹر وہیکل رولز جو ہیں اس کے مطابق اپنے جو کور فنکشنز ہیں ان کو پرفارم کرتے ہیں، جس میں روٹ پرمٹس کی ایشوینس ہے، جس کے اندر فٹنس سرٹیفکیٹس کی ہے، اس کی چیکنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 ویلرز ہیں، آٹو رکشاز، ان کے لائسنسز ہیں۔ تو دیز آر ون آف آر کور فنکشن۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نان AC بسز ہے، اس کی جو ہے اس کی ریگولیشن کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ نے جہاں پہ بھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں لاہور کی سب سے بڑی فرنیچر نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ 3 روزہ پاکستان انٹیریئرز فرنیچر ایکسپو کا آج پہلا روز ہے۔ نت نئے ڈیزائن کا فرنیچر اور صوفہ سیٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پاکستان انٹیریئرز فرنیچر نمائش 13 جولائی تک جاری رہے گی۔ نمائش میں بیڈز، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبلز، ڈور میٹ اور سوات کی لکڑی سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹ ڈسپلے کیے گئے۔ پاکستان انٹیریئرز فرنیچر نمائش کی نمائندگی عبداللہ شاہ نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ نمائش میں 100 ٹاپ فرنیچر کمپنیز کے سٹالز لگائے گئے۔ تینوں روز صارفین کو 50% تک رعایت دی جائے گی۔ یہاں پہ آپ کو ویڈنگ فرنیچرز ملیں گے، آپ کو ترکش ڈیزائن کے فرنیچرز ملیں گے، یہاں پہ رگز ہیں، ڈیکور کے آئٹمز ہیں، اور یہ لاہور کی جو عوام ہے اس کے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ ایکسپو سینٹر ہال نمبر 3 کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آ کے اپنے من پسند جو فرنیچر ہے وہ بائی کریں۔ ملک بھر سے صارفین نے نمائش میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی چھت تلے انہیں مختلف اقسام کا فرنیچر دیکھنے کو ملا ہے اور ریٹس بھی مناسب ہیں۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا، اور ماشاءاللہ سے ان کی جو پرائزز ہیں وہ بھی مطلب اتنی زیادہ نہیں ہے، مطلب اکنامیکل پرائزز ہیں، اور جو ریٹرن پرائز ہے اس میں بھی تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایکسپو کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ ایک چھت پہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اچھا کلائنٹس آتا ہے، اچھی مارکیٹ ہوتی ہے، نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں، بہتر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کلائنٹ کو۔ اسٹال ہولڈرز نے اپنی اپنی پروڈکٹس کی خصوصیات بیان کی اور ایکسپو کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ ہمارا جو فرنیچر ہے یہ سواتی ہینڈ میڈ فرنیچر ہے، یہ پیور ووڈ میں ہم بنا رہے ہیں، اور دوسرا ہینڈ میڈ ورکنگ ہے، تیسرا ہم انٹیکس میں بنا رہے ہیں۔ سب سے بیسٹ پارٹ یہی ہے کہ یہاں پر جو ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ ہے۔ سو لوگ آئیں، یہاں وزٹ کریں، یہاں کا فرنیچر، بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، بہت ساری آئٹمس ہیں یہاں پر، آپ کو بہت کچھ یہاں پر ملے گا۔ فرنیچر نمائش کو زیرو ہیلتھ کیئر پاکستان نے سپانسر کیا۔ ایکسپو میں دی ہوم باکس، یسکال فرنیچر، ووڈن فرنیچر، شاور ووڈ لینڈ، گلوری ہومز اور ہینڈی کرافٹ بائی سوات سمیت ڈور میٹس اور رگز کے سٹالز ڈسپلے کیے گئے۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔